Good morning, dear students. Welcome to your online classes. My name is Juhi. I'll be taking your SST. Okay. So this is the SST book which you have. Today we'll start the geography chapter, that is chapter 16. Name of the chapter is Atmosphere and its activities. So my suggestion is you keep your books open in front of you. Whenever I tell you to underline something important, then you can underline. Also, what I used to do was I used to keep a crayon in my hand. है ना, सबके पास highlighter अभी ना हो, so you can use crayon, any crayon of your favorite color, so that underline it with this. Okay. अब एग्जाम्स में आप खोलेंगे तो जो भी colored lines हैं, you can quickly give it a revision. So whenever I tell you to underline, you will keep your books open for that. Okay. Rest I'll explain you here only. So what we'll do today, I'll give you a brief introduction, then we'll study composition of atmosphere which is given in your books. Okay. So a brief introduction of your chapter. चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर एंड इट्स एक्टिविटीज. सो फर्स्टली जो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है, यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, राइट. सो जो अर्थ के अराउंड जो ब्लैंकेट ऑफ एयर्स है जो हमें प्रोटेक्ट करता है वही एटमॉस्फेयर है. ओके. नाउ इन एटमॉस्फेयर different types of gases are present, like what we breathe oxygen, you all know that. What we exhale CO2, that is carbon dioxide. And what is carbon dioxide used for? Then it's used by plants, right? So all these basic things you know. Also there are many other gases also, like nitrogen and all, we'll study from your books. And what else we'll study? We'll study atmosphere अगर है जो blanket है तो उसका भी एक structure है, right? Now suppose you are flying in an aeroplane. Many of you must be have seated in an aeroplane. अगर आप एरोप्लेन में बैठ के खिड़की से नीचे देखें तो आप देखें बादल आपसे नीचे होंगे. हम बादलों के ऊपर फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में. सो वो कौन सी लेयर में है, वो कौन सी लेयर है जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करेंगे, वो कौन सी लेयर है जहाँ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ लाइक रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, है ना, स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं. उससे भी ऊपर एक लेयर होगी, उससे भी ऊपर एक लेयर होगी, उसके बाद स्पेस होगा, राइट. सो अलग अलग लेयर्स को हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर की डिटेल में. देन वील सी दीज सब्जेक्टिव टॉपिक्स लाइक वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर एंड इनके इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनके यूनिट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, right? So this is just the brief introduction of your chapter. Now you can open your books, keep it open and you can read it along with me here. Okay, whenever I tell you to underline, you will underline it. It's a very interesting chapter, students. Atmosphere and its activities. आप अपनी ही मदर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जान रहे हो, राइट? आप रहते हो जहाँ पर, उसी के बारे में आप जान रहे हो, तो इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, राइट? सो नाउ यू कैन गिव इट अ रीड अलॉन्ग विथ मी. फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे पहले आप यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है. यू कैन सी वेयर माय कर्सर इज. यू कैन सी दिस पाई चार्ट. ये पाई चार्ट दिखा रहा है कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा होती हैं. सो दिस नाइट्रोजन को जो डिनोट कर रहा है नाइट्रोजन, यू कैन सी वेयर माय कर्सर इज. नाइट्रोजन इज 78%. देन यू सी दिस पार्ट, दिस इज फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज 21%. एंड देन यू सी दिस अदर गैसेस आर वेरी लो. मतलब इस पाई चार्ट को देखते ही, पढ़ने से पहले ही आप समझ गए एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है दैट इज नाइट्रोजन, राइट? नाउ यू गिव इट अ रीड. The thick layer of air surrounding the earth is called atmosphere. So now, as I have told you, you'll underline this in your books, okay? यही है atmosphere की definition. Thick layer of earth surrounding the earth is called atmosphere. So now, कोई भी आपसे पूछे फ्यूचर में, चाहे अभी, एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपके माइंड में ये डेफिनेशन क्लिक करना चाहिए, राइट? नाउ गिव इट अ रीड. नेक्स्ट लाइन. Nitrogen 78% and oxygen 21%
are the two predominant gases present in the atmosphere. So पाई चार्ट से आप समझ ही गए थे, predominant मतलब सबसे ज़्यादा जो गैसेस मिलती हैं हमें एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड देन उसके बाद ऑक्सीजन. ओके. Other gases like water vapor, dust particles, carbon dioxide, etc. together make up the remaining 1% of atmosphere. So as again we have seen in pie chart in advance only. So nothing new, है ना. Other gases में carbon dioxide, water vapors, dust particles and all आएंगे. ये constitute करते हैं only 1% of the atmosphere. Now come to next paragraph. Carbon dioxide constitutes only 0.3% of the air. I hope you all are focused students. You all are reading along with me. Okay? Be focused, else सिर्फ रट्टाफिकेशन होगा एंड टाइम पे. दैट आई डोंट वांट. अगर आप अभी फोकस्ड वे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा. एग्जाम्स में प्रेशर भी नहीं आएगा. ओके. सो नो वन शुड सिट इन देयर ब्लैंकेट्स एंड स्टडी इन माई क्लास. I want you all to sit straight and focus here when I am reading. More importantly, you read along with me. Okay? So what we just learned, carbon dioxide सिर्फ 0.3% है एयर में. ओके. 0.3% मतलब 1% से भी कम. ये अदर गैसेस का 1% है, उनमें 0.3% है कार्बन डाइऑक्साइड. However, it is an important component of the air. It plays an important role in trapping the solar energy from the sun. This phenomena is called greenhouse effect. So now, greenhouse effects, इसे भी आप underline कर लें. इससे पहले आप मुझसे समझें. Okay? Many of these things are not given in your book. I'll explain you greenhouse effect once and for all. आज समझ लेंगे, हमेशा के लिए. आप ग्रीन हाउस इफेक्ट हर क्लास में पढ़ने को मिलता है. यू कैन ऑलवेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट. यू रीड अबाउट इट इन साइंस ऑल्सो एंड इन सीनियर क्लासेस ऑल्सो. एवरी टाइम ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्ड इज देयर. ओके. ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. सो नाउ फर्स्ट यू अंडरस्टैंड. ओके. सी, दिस इज आवर सन. जो भी सन रेज आती हैं वो अर्थ पे कुछ जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं. ओके. यू सी द डायग्राम अलोंग विथ मी एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो. प्लीज बी फोकस्ड. ओके. सो अर्थ पे जो कुछ सन रेज आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, कुछ जो है वो क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं. पर कुछ ऐसी रेज हैं, यू कैन सी दिस एरो, कुछ रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं अर्थ के सरफेस से. ओके. सो ये अर्थ से जो रिफ्लेक्ट बैक होती है रेज, दैट इज एब्जॉर्ब बाय CO2. नाउ व्हाट आई मीन इज, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, वो ज़्यादा होगा कैसे? हम जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे, राइट? इफ CO2 इज मोर इन एटमॉस्फेयर, देन व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट अलाउ दीज रेज टू रिफ्लेक्ट बैक. यहाँ पर एक ब्लैंकेट सा बन जाएगा और वो उसको अंदर ही रखेगा अर्थ के. ओके. इट विल नॉट अलाउ इट टू रिफ्लेक्ट बैक. इट विल एब्जॉर्ब इट. CO2 का जो लेयर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा. अब स्लोली एंड स्लोली व्हाट विल हैपन? व्हेन इट्स नॉट अलाउड टू रिफ्लेक्ट बैक, देन ऑब्वियसली अर्थ्स टेम्परेचर विल गेट हीटेड अप, राइट? एंड इफ अर्थ्स टेम्परेचर इज हीटिंग अप, there is change of temperature and pressure on our earth. We feel too much of summers and also polar ice caps. जो poles है आपके globe पे, glaciers हैं, glaciers जो ice की बड़ी बड़ी sheets होती हैं, they'll start melting. And now if they'll start melting, it's a slow process, right? Then they'll start melting, then what will happen? जो ocean level है, sea level है, that will start rising. Okay? I'm explaining you in little Hindi also so that you keep this in mind. Okay, some things are not given in your book, but you should know what greenhouse effect is. Now sea level rise होने लग गया, तो जो coastal countries हैं, like इंडिया की जो कोस्टल कंट्रीज हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे, दैट इज ओशन के कोस्ट के नियर जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे फ्लड्स, सुनामीज,
ये सब आते रहेंगे। ओके, सो देखा जाए तो हुआ क्या, एक बैलेंस जो मेंटेन्ड है वो बिगड़ गया। एंड किसी भी चीज़ का बैलेंस बिगड़े, लाइक इन आवर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, इफ वी ईट टू मच और इफ वी डोंट ईट, देन कुछ ना कुछ बुरा होगा ही हमारी हेल्थ के साथ भी। सो सेम इज द केस ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो, सेम इज द केस ऑफ एवरीथिंग, यू नो। स्वामी विवेकानंद हैज सेड ऑल्सो, एवरीथिंग जो बैलेंस बिगाड़ दे वो पॉइजन है। जब किसी ने उनसे पूछा व्हाट इज पॉइजन, ही सेड कुछ भी ऐसा जो बैलेंस बिगाड़ दे, या तो ज़्यादा हो या कम हो, वो ही पॉइजन है। ओके, सो इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो दिस इज द केस। इफ यू प्ले टू मच, then also it's not good, and if you don't play, then also it's not good. Everything should be in balance. So now here what happened is balance बिगड़ गया है, right? So this is what greenhouse effect is, and greenhouse gas कौन हो गई responsible? Carbon dioxide. So now you know carbon dioxide is also called greenhouse gas. अब होगा क्या? Global warming होगी, right? I'll repeat it if you want. जहाँ पे भी आपकी बुक्स में स्पेस है, यू कैन मेंशन दी पॉइंट्स। फर्स्टली व्हाट विल हैपन, सन रेडिएशंस विल कम, some of the radiations, you don't have to remember the percentage, you can use this word, some of the radiations are absorbed by earth, some of the radiations are scattered in atmosphere, and some are reflected back from earth's surface. But in case CO2 is more, then these reflected waves will not be able to cross that layer of CO2, okay? So they'll get trapped here only. Then what will happen? Slowly and slowly, Earth's temperature will start rising. Then what will happen? Earth's temperature is rising, it will lead to global warming, polar ice sheets will start melting, sea level will start rising, and the coastal countries are more prone to floods and all. Now मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया। I hope now आपको समझ आ गया है। Now if I tell you write a short note on greenhouse effect, you can write it in your own language, right? अपनी own language में आप लिख देंगे, कंडीशन है आपकी ग्रामर सही हो। Okay, so now I hope you have understood this. So we have read till here. This phenomena is called glass house or greenhouse effect. ग्लास हाउस क्यों कहते हैं? सी, नॉर्मली प्लांट्स जैसे ग्रो करते हैं बट इन लेबोरेटरीज अंडर स्पेशल कंडीशंस कुछ प्लांट्स को ऐसे ग्लास में रखकर ग्रो किया जाता है। ओके, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो वहाँ पर जो ग्लास हाउस होता है उसमें भी यही केस होता है। ओके, हीट ट्रैप हो जाती है और वो उन प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। सो ऐसे प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं लेबोरेटरी में जहाँ बहुत ठंड हो पर गर्मी उसे प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स को ग्लास हाउस में रख के। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, सो वो केस वहाँ पे भी होता है उस ग्लास हाउस में और वही केस हमारे अर्थ में भी हो रहा है, इसीलिए उसी फिनोमिना को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड ग्लास हाउस इफेक्ट ऑल्सो। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now read the next line along with me. In modern times, burning of fossil fuels, emission from automobiles and smoke from industries contribute to an increased proportion of carbon dioxide resulting in global warming. So I have explained you everything related to greenhouse effect and global warming. Just you have to keep that diagram in mind. If you want, you can take the screenshot because it's not given in your book. This diagram, if you will keep in mind, everything you can write at your own, in your own language, okay? These percentage you don't have to remember. You can use these words like some of the radiations, some of the radiations, okay? Don't remember the exact percentage. So now, CO2 अगर ब्लैंकेट बना रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? We are doing something, man is doing something, okay? We are burning fossil fuels, एंड फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स में से जो धुआं निकल रहा है, एवरीथिंग लाइक दिस, है ना, व्हीकल्स में से भी जो धुआं निकल रहा है, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ आई होप इन लाइफ यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। कीप इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, ओके? सॉरी, हाँ, तो आप पॉइंट वाइज रिमेंबर करें इसे।
then you'll be able to write at your own. I'll repeat it again for your revision. Some of the sun radiations are absorbed by earth, some are scattered in atmosphere, some are reflected back. But agar CO2, if CO2 is more, then these reflected rays are not able to escape the earth's atmosphere. They are trapped here only, which results in the increased temperature of earth. Slowly and slowly it will lead to global warming, polar caps will start melting, sea level will start rising, coastal areas will be more prone to floods and we'll face the extreme temperature. Okay, जैसे कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है, so that's also because of global warming only. So now you can write this as your answer if I tell you to write a short note on global warming, right? I hope आपको समझ आ गया हो. Pause the video, repeat these points once. एक बार आप अपने आप इसे repeat करें, points बना लें, repeat it. Okay, that's what is greenhouse effect. In every class you'll write this answer only. Now come to next paragraph. Found in the stratosphere, ozone gas protects us from the ultraviolet rays. Ultraviolet rays को UV rays भी कहते हैं. Now ओजोन आपने बहुत बार सुना होगा. ओके, नाउ यहाँ पे हम उसे पढ़ भी रहे हैं. मैंने आपको समझाया था एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं. वील स्टडी देम इन डिटेल ऑल्सो, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर एंड अंडरलाइन इन योर बुक्स विद अ क्रेयॉन दैट इट्स फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे ओजोन गैस हमें मिलती है. ओजोन गैस का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम सन. सी ऑल द सन रेज आर नॉट गुड. ओके, दे हैव यूवी रेडिएशंस आल्सो. सो ओजोन लेयर में यूवी रेज वहीं रुक जाती हैं, आगे की सन रेज हमारे पास आती हैं. बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग? ओजोन में ही होल हो गए हैं. सो सारी सन रेज हमारे पास आ रही हैं, उनमें से बहुत सी हार्मफुल भी हैं. This is only the reason that we at the young age are having white hair, and also there are many diseases like cancer and everything. Okay, अब ओजोन लेयर में होल हुआ क्यों? Again it's because of man only, है ना. मैन ने इतना ग्रीड में इतना एटमॉस्फेयर को हार्म किया है, इसके ही सारे रीजंस हैं जो आज हम देख रहे हैं. ओके, अभी तो you have seen in corona time when there was complete lockdown, we have seen birds also, right? किस किस के घर पे birds आई थी, और बहुत टाइम से हमने birds नहीं देखी थी, है ना. बिकॉज हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, हर चीज को इतना हार्म कर रहे हैं, ट्रीज कटिंग हो रही है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ओके, एंड उन्हीं सब के इफेक्ट्स हैं जो आज आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं. अगर हमने ये सब ना किया होता, सब ठीक होता, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती. ओके, सो नाउ यू सी, कंक्लूजन इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल अबाउट ओजोन लेयर, बट यू विल गिव इट अ रीड अगेन. फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. Chlorofluorocarbons used in refrigerators and air conditioners are the main cause of depletion of ozone layer. Again, you'll underline this. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं वहाँ से एमिट होता है. दैट्स रिस्पॉन्सिबल कि ओजोन में आज होल हो गया है. ओके, ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, harmful ultraviolet rays can now reach the earth, causing skin cancer and other diseases. Okay, I hope you have understood from this paragraph, and now you can write in your own language also, but your English should be correct. Okay, so स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर मिलती है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है. पर आजकल व्हेन वी आर यूजिंग एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स at an alarming rate, then chlorofluorocarbons are emitted from that. What they do, they deplete the ozone layer, and now if ozone layer is depleted और वहाँ पे होल हो गया है, तो सारी सनरेज हमारे पास पहुँचेंगी. उसी का कारण है आज स्किन कैंसर्स एंड डिजीजेज एंड वाइट हेयर, जेनेटिक डिजीजेस, ये सब होते हैं. ओके, नाउ आई होप यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. हम आज इतना ही पढ़ेंगे. यू विल गिव इट अ रिविजन. ओके, मेक पॉइंट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो.
That's all for today. Keep revising. Take care. Thank you. And I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.